Hello everybody, welcome back to my channel. So as you have read by the title, in this video we will be definitely talking about, is DU JAT really worth the hype? So as I have talked about different courses, specifically economics honors in my previous videos, I will be properly unwrapping DU JAT for you guys through my personal experience and research. Everything that I'm talking about when it comes to the research part will be given down below in the description box, so you can definitely verify it through if I misspoke anything, which I'm truly sorry about in advance. So just begin the video. So first of all, I know that many of you have already been through the process who are watching my video, or are maybe in the dilemma of opting for different courses like DU JAT, or in the process कि यार हमें कोचिंग्स लेनी चाहिए, इसकी खुद सेल्फ प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, whatever. So I think the maximum students will be from the commerce stream who will be thinking about pursuing DU JAT, because we are the students. When I talking about we, because I was on that side 3 years back. So that ki kuch karna hai, that we have to do something. So what happens exactly, let me tell you, or maybe go bear with me through the nostalgia. What happens is, either there will be a career counselor or a proper institution member or a salesperson will directly contact you, or through your school or tuition center. So how this this vicious circle, I would say this is a vicious circle of coaching classes, how this works. They know कि these students okay, first of all I will be speaking mostly in Hindi. मैं हिंदी में बात करूँगी because I think there was one person who wanted the video in Hindi, so I'm like okay, हिंदी में बात करेंगे हम. That there is this vicious circle. कैसे काम करते हैं ये? They are like institutes जो directly schools के साथ या फिर tuition centers के साथ, if you are studying in again really famous tuition center of your area, तो वो डायरेक्टली उनको कांटेक्ट करेंगे एंड दे विल बी लाइक कि हम कुछ टाइप करेंगे कुछ परसेंटेज का, या आप हमें स्टूडेंट्स भेजोगे तो हम आपको इतना % ऑफ करेंगे. एंड बहुत सारी क्लिक बेट टाइप्स डील्स होती हैं, ठीक है. तो हम उस डील्स में नहीं जाएंगे बिकॉज अभी हम कोचिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, बट ऐसी डील्स होती हैं एंड वो आपके पास आएंगे थ्रू करियर काउंसलर्स. एंड इफ़ यू आर फ्रॉम रोहिणी, अगर आप किसी रोहिणी के स्कूल में हो, देन यू नो द करियर काउंसलर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. अ फेमस करियर काउंसलर, आई डू नॉट वांट टू टेक नेम्स, बट एक फेमस करियर काउंसलर है जो उस एरिया में प्रॉपरली सेटल्ड अप है. एंड अगेन 2-3 इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत फेमस है उस एरिया में, तो वो आके बात करेंगे आपसे, और वो आपको इस बात की इस कन्विक्शन से बोलते हैं वो लोग कि यू विल बी लाइक कन्विंस्ड कि यार ठीक है, हम जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, हमने आज तक 11 तक हमने जितनी अच्छी पढ़ाई करी हो, जो भी करा हो, we will not be scoring good marks in our 12th, so we have to look out for a backup plan. And it is not bad to have a backup plan, but you need to know कि वो cost है उस backup plan की या नहीं, मतलब is it actually worth to have a plan, मतलब कुछ सोचना पड़ेगा आपको. So वो आपको आगे कन्विक्शन से बताएंगे कि ठीक है यार, नहीं होने वाला, हर किसी का ड्यू नहीं हो जाता, हर किसी का आईपी नहीं हो जाता. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो जाती. आपको कुछ एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज में एनरोल होना पड़ेगा, तो आपको समझ आता है. एंड वो ऐसे नहीं बोलेंगे, वो एंट्रेंस कोर्सेज को आपको डायरेक्टली नहीं बताएंगे, वो आपको ऐसे बताएंगे, अच्छा सपोज एक 100 स्टूडेंट्स की क्लास में वो आए हैं एंड देयर लाइक कि टीचर किसको बनना है. आई थिंक 10% बच्चे भी नहीं होंगे जो बोलेंगे कि ठीक है, आई वांट टू बी अ टीचर, बट देन दे विल बी लाइक कि अच्छा ठीक है, व्हाट इफ़ आई से कि वो टीचर की जॉब 30 लाख 40 लाख 50 लाख पर एनम की होगी, तो भी नहीं बनना चाहोगे. एंड देन आई थिंक 50% ऑक्यूपेंसी हो जाती है कि अच्छा ठीक है, हमें टीचर बनना है. तो फिर वो अपना गेम स्टार्ट करते हैं, तो वो एक्सप्लेन करते हैं, और एट द एंड दे विल बी लाइक
हम इस साइड पे यहाँ पे बैठते हैं, ये हमारा कोचिंग सेंटर है, हम यहाँ पे ट्यूशन्स प्रोवाइड करते हैं, ब्ला 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 करके पूरा समझाएंगे. एंड आफ्टर गिविंग योर बोर्ड्स एंड स्टफ, आप उनके पास जाते हो. मैं भी गई थी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी गए थे, एंड आई थिंक मैनी पीपल आई न्यू इन माई स्कूल वेंट अप फॉर दी सेम ट्यूशन कोचिंग, क्योंकि दे नो, ठीक है, उनको पता होता है. एंड स्पेशली कि अगर आप अपनी फैमिली में एल्डेस्ट हो, आप कोई कॉमर्स स्ट्रीम के नहीं हो, किसी और स्ट्रीम्स के बच्चे ज़्यादा हैं, फैमिली बैकग्राउंड अलग है, कुछ भी है, तो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता ना जब, तो आप डेफिनेटली दूसरों की बातों में आके जाते हो. तो वही चीज़ें हुई थी, सेम होता है. आई थिंक हुई क्या थी, अभी भी मैक्सिमम होता है. ऐसा नहीं है कि ये ट्यूशन सेंटर्स चल नहीं रहे, कोचिंग सेंटर्स चल नहीं रहे, चल रहे हैं, एंड दे आर रनिंग इन अ गुड अमाउंट. ओके, तो ये सब हुआ, जाते हो आप वहाँ पे एंड दे विल टीच यू. ओके, अब वो आपको पूरा सेल्समैनशिप होती है, आप कोर्स बाय कर लोगे उनका, वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है. बट इस पॉइंट पे आके यू नीड टू थिंक, मतलब उस पॉइंट पे जाके नहीं, आप उससे पहले ही सोच लो. इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो बिफोर हैंड, आप पहले जाके सोच लो, डू यू थिंक यू आर प्रिपेयर्ड immediately after giving your boards exam to get yourself enrolled in entrance classes where you will be getting taught 6 to 7 hours a day, and then you are expected to study the remaining time that you will be able to put in that much effort just after giving your boards, because your mind, your body, your soul, even your soul is so much tired after giving boards. So you are ready for that. Second thing, do you think you can prepare even after giving that board exams? Do you think that you are actually prepared, or do you think you can actually clear an entrance exam? In itself is a big thing. You can clear an entrance exam just by preparing for 2.5 or 3 months. Do you think you can do it? If you are just like ticking both the boxes, I think you should go for it and take the coaching class and study. But again, as I say in my previous videos, just look out for the syllabus. देखो कि वो syllabus relate करते हो, आप वो syllabus पढ़ सकते हो. एंट्रेंस कोर्स का तो भी बात की बात है, कोर्स क्या करना है क्या नहीं करना है, बट जो ड्यू जैट की प्रिपरेशन के लिए जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो उस लेवल का वो कर सकते हो आप. अगेन मैथ्स ड्यू जैट की एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू शुड बी अगेन थरो विद योर 11th-12th कंसेप्ट्स. ऑल्दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, बट डेफिनेटली क्वेश्चंस होंगे, कौन से रिलेटेड होंगे, तो जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपको 11th-12th का मैथ्स आता हो और वो एक अपर हैंड हो जाता है. नाउ अगेन आपने वो चीज़ें क्लियर कर ली, एंड अब आपका सिलेक्शन लिस्ट में नेम आ रहा है, विच इज़ द फेज़ 2 वेयर कम्स माई रिसर्चिंग. फर्स्ट पार्ट वॉज माई एक्सपीरियंस, सेकेंड पार्ट इज़ माई रिसर्चिंग. सो सेकेंड पार्ट अब रिसर्चिंग का है, जो है मैंने जब दिया था लाइक 3 years बैक, देयर वर लाइक आई थिंक 5 colleges दैट वर ऑफरिंग ड्यू जैट कोर्सेज, बट नाउ आई थिंक देयर आर 10 to 12 colleges. धीरे धीरे दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन अप कर रहा है, मतलब कॉलेजेस ओपन अप नहीं कर रहा है, कॉलेजेस के अंदर कोर्सेज ओपन कर रहा है अवेलेबल कॉलेजेस के अंदर. सो अगेन व्हेन आई से कि एंट्रेंस बेस्ड कोर्स, तो एंट्रेंस बेस्ड कोर्स में हमेशा कॉलेज इज़ मोर प्रेफरेबल. ओके, कोर्स तो ऑब्वियसली एंट्रेंस बेस्ड है ही, बट कॉलेज इज़ वर्थ द वैल्यू. ओके, मतलब अगर मैं बोल रही हूँ MBA इज़ अ गुड कोर्स, बट फ्रॉम विच कॉलेज डिपेंड करता है. आप कोई भी अपने तुल्लू मुल्लू चंद से MBA करके निकलोगे एंड यू एक्सपेक्ट कि ठीक है यार मेरे को तो आराम से 25 लाख का पैकेज मिलेगा स्टार्टिंग, नॉट पॉसिबल डू, नॉट हैपनिंग. बट यही अगर आप IIM से कर रहे हो, देन यू कैन एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ अ पैकेज. तो अगेन एंट्रेंस बेस्ड कोर्स है ना वो, तो सिमिलरली एंट्रेंस बेस्ड कोर्स में अगर आपकी कॉलेज इज़ वर्थ द वैल्यू, आई विल पुटिंग आउट अ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस दैट ऑफर BMS, BBE and BFIA. These, the best amongst them is obviously number 1 Shahid Sukhdev. So Shahid Sukhdev मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है. It's like the what do you say top students who get enrolled in this college. अब मैं आपको जो मैक्सिमम चीज़ें बता सकती हूँ इज़ लाइक कि BMS, BBE और BFI में
फ़र्क क्या है कि अगर आपका तीनों में नाम आ रहा है तो आपको तीनों में से कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए। सो ऑप्ट करना चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है तीनों कोर्सेज़ में। जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है, ठीक है, और कोर्सेज़ भी बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत एक एक टॉपिक्स फाइनल ईयर में जाके अलग अलग हो जाएंगे, बट वैसे बहुत सिमिलर सिलेबस अराउंड घूमता है। जैसे BMS में आपको इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, कॉमर्स की डिफरेंट स्ट्रीम्स विच इज़ इंक्लूड रिसर्च एंड एवरीथिंग वो पढ़ाते हैं। अगेन विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है विच इज़ आई थिंक सॉफ्टवेयर एज देयर प्रोस्पेक्टस सेज। सिमिलरली BBE में आपका इकोनॉमिक्स की इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एवरीथिंग दैट कम्स बट टू अ मैनेजरियल लेवल, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स है। एंड BFI में फाइनेंस, अकाउंटिंग, कॉमर्स, रिसर्च, एवरीथिंग लाइक दैट रिलेटेड टू द बिजनेस थिंग विच इज़ हैपनिंग। तो ये सब चीज़ें होती हैं। प्रैक्टिकल, तीनों बहुत प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं, तो आई थिंक सॉफ्टवेयर कराते हैं एज पर द प्रोस्पेक्टस सेज। बट क्योंकि बहुत वास्ट चीज़ें चलती हैं साइड बाय साइड, तो बच्चे साथ में विद दिस कोर्स डिफरेंट कोर्सेज करते हैं, स्पेसिफिकली CA एंड CS दे परस्यू। ऑल्दो मतलब मेरे टाइम में अलाउड नहीं होता था, छुप के करते थे, सब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने नहीं किया। CA मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स की हूँ क्योंकि, बट साथ में कोर्सेज में करते हैं क्योंकि अकाउंटिंग वगैरह साथ साथ चल रहा होता है, तो CA कोर्सेज करते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, इसलिए यू कैन लुक आउट। आप रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि अगर आप शहीद सुखदेव जैसे कॉलेज में हो तो आप ऑब्वियसली इतने इंटेलिजेंट इनफ हो कि आप रिसर्च करके चीज़ों में जाओगे, आप इम्पल्सिव डिसीजंस आई होप नहीं ले रहे हो। तो CA वगैरह इज़ वन ऑप्शन। अगर आप मुझसे पूछते हो कि अगर आपको डायरेक्टली जॉब नहीं करनी है एंड एवरेज पैकेज, अगेन अगर आप शहीद सुखदेव के अलावा बाकी किसी कॉलेज में जाते हो तो एवरेज पैकेज इज़ 3 to 8 लाख, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट पैकेज तो 34-40 लाख भी जा सकता है, उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन एवरेज पैकेज इज़ 3 to 8 lakhs। बट आफ्टर ऑप्शंस ऑफ द ड्यू जैट कोर्सेज इज़ आपको ऑफ़र होता है इंडिया में इज़ मोस्टली MBA जो आप कर सकते हो। इट्स द ओनली डायरेक्ट कोर्स जो आप कर सकते हो। अगेन PGDM अवेलेबल है, बट बहुत लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं थ्रू आउट इंडिया एंड दिल्ली में तो आई थिंक मुझे जेन्युइनली पता भी नहीं है कोई फेमस कॉलेजेस PGDM के लिए। MBA इज़ अगेन वन ऑफ द हाइप्ड एंड द मोस्ट रिक्वायर्ड, मतलब सब करते हैं MBA, ऐसा वाला चीज़ चल रहा है। सो MBA कर सकते हो अगर आप इंडिया में, अगेन इफ़ यू कैन अफोर्ड, और आप ट्राई कर सकते हो तो अब्रॉड के ऑप्शंस विच इज़ लाइक फॉरेन कंट्रीज़ में, विच इज़ मोस्टली UK, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, विच इज़ लाइक कमिंग अप द कंट्रीज़। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे PGDM के ऑप्शंस अवेलेबल है, अगेन इन मैनेजमेंट। तो इफ़ यू कैन अफोर्ड और स्टूडेंट लोन लेके प्लस यू कैन थिंक कि आप वो प्लानिंग आउट कर सकते हो, तो आई थिंक आप अब्रॉड जाके भी अच्छा कर सकते हो। और अब्रॉड जाने के लिए बहुत सारे अलग फैक्टर्स भी सोचने पड़ते हैं, इट्स नॉट जस्ट कि इम्पल्सिव डिसीजंस। अगेन बहुत बच्चे ले रहे हैं आजकल, बट सोच समझ के करो यार, एकदम से हपड़ा दपड़ी में कि ठीक है पैसों का अरेंजमेंट हो गया तो मैं निकल जाता हूँ, सोच समझ के करूँ। आई थिंक इस वीडियो में ये सब मिला के मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ड्यू जैट की जो हाइप है वो उतना हाइप ऑब्वियसली रिक्वायर नहीं करता है। इट्स जस्ट कि वो प्रमोशनल इतना लेवल पे हो गया है कि अब हमको हो गया है जैसे जिस लेवल पे MBA चल रहा है उस लेवल पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अंडरग्रेड में, क्योंकि वो एक एंट्रेंस बेस्ड कोर्स है फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, फॉर कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली। तो इसीलिए बाकी आई थिंक वो इतना हाइप डिज़र्व नहीं करता है। इट्स लाइक कि इफ़ यू थिंक कि आपके अंदर वो मैनेजरियल IQ है, वो सब है, तो आपको ऑप्ट करना चाहिए, वो करना चाहिए। कोर्स भी, मैं एंट्रेंस की बात नहीं कर रही, मैं कोर्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जो बच्चे ड्यू जैट में टॉप कर रहे हैं उनकी बहुत अच्छी परसेंटेजेस आई हुई होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैनेजरियल लेवल पे भी उतने सूटेबल हो गए। तो आप डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हो उसके लिए, नहीं तो आप खुद गो थ्रू कर सकते हो कि आप कितने अच्छे हो मैनेजरियल कोर्सेज़ के लिए, आपका कितना प्रैक्टिकल माइंड है एज़ कम्पेयर टू थियोरेटिकल माइंड। आप उन चीज़ों को कंपेयर करके ऑब्वियसली डिसीजन लो
और फॉर द बेस्ट लो के साथ में आपको कुछ करना है, आगे आप अपने आप को क्या करते हुए देखना चाहते हो, आप कितने वर्स के लिए प्रिपेयर हो, आप कितने बेस्ट के लिए तो ऑब्वियसली सब होप करते हैं, बट आप कितने वर्स के लिए आप प्रिपेयर हो, चीज़ें, इन सब चीज़ों को वे करो एंड देन मेक अ प्रॉपर डिसीजन. आई थिंक DU-JAT की रैंकिंग्स आ गई हैं या आने वाली है बाय द टाइम आई विल पोस्ट दिस वीडियो, सो यू कैन definitely check that out. All the details will be in my description box below. Everything you can obviously comment down below and ask me anything you want about any course for undergrad in DU. You can ask me. I will probably do all the research from my side and provide you the best guidance possible. That's it for this video. I hope I will see you guys on Monday, hopefully, as this is again a long weekend of festivities. So first of all, happy Diwali to you guys, and I will hopefully see you guys on Monday. Until that, please like and subscribe to my channel, and we'll see you guys in my next video.